Yes, better. Good morning, all of you. Okay, today we are starting with the next topic, and our next topic is circulatory pathways. Okay, how many type of circulatory pathways are there? We have two type of circulatory pathways. Okay, I have already discussed. First type of circulatory pathways is closed circulatory pathway. ठीक है, दो तरह के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स हैं. One is closed circulatory pathway, and another one is known as open circulatory pathway. ठीक है, always remember the closed circulatory pathway is the characteristic feature of advanced multicellular organisms. ठीक है बेटे, closed circulatory system is the characteristic feature of advanced multicellular organism. This means most of the members of chordates they come under closed circulatory pathways. Beside these annelids जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, और एनिलिड्स के अलावा और कौन से आ जाएंगे सोचिए. यस बेटा, कॉर्डेट के बाद की तो सारी क्लासेस आ ही जानी है. ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट, जहाँ पे आपको दोनों तरह के सर्कुलेटरी पाथवे दिए हुए हैं. ओपन सर्कुलेटरी पाथवे इज मोस्ट जनरली फाउंड इन केस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्कस, whereas closed circulatory pathway are the characteristic feature of phylum Annelida and phylum Chordata. ठीक है, फाइलम एनिलिडा के अंदर जितने भी मेंबर हैं कॉर्डेट्स के वो सारे जो है इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब कॉर्डेट की सारी क्लासेस आ जाएंगी. और ओपन सर्कुलेटरी पाथवे जो है उसमें मोस्टली मोलस्कस आ जाते हैं. ठीक है, मोलस्का के मेंबर आ जाते हैं, और इसके अलावा देखो और कौन से आ जाते हैं. ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स आ जाते हैं. तो आर्थ्रोपॉड्स में जनरली कौन से आ जाएंगे, इंसेक्ट्स, ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं. So what is the special thing about the closed circulatory pathway and the open circulatory pathway? तो एक एक करके देखते हैं. देखो, if we have open circulatory pathway, I have already discussed that open circulatory pathway is a characteristic of primitive type of organism. ठीक है, primitive type of organism तो जनरली अर्थ की सरफेस पे पहले अपीयर हुए हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी पाथवे है. और खास बात क्या है, इसके अंदर वो कहते हैं कि हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. तो हार्ट इज देयर. हार्ट क्या करता है, ब्लड जो है उसको पंप करता है. ठीक है, हार्ट पंप्स द ब्लड, और उसके बाद वो ब्लड जो है उसको कौन कैरी करेगा, तो लार्ज वेसल्स जो है दे कैरी दिस ब्लड. ठीक है, बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं वो उस ब्लड को कैरी करती हैं, बट लेटर ऑन दिस लार्ज वेसल्स they pour this blood into open cavities. इसे ओपन कैविटीज में डाल देती हैं इस ब्लड को, और इनको क्या बोला गया है, सिनियोसिस बोला गया है. ठीक बेटे, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा. व्हाट आर सिनियोसिस? सो सिनियोसिस आर द ओपन कैविटीज in which the blood is poured by the large blood vessels after pumping through the heart in case of primitive type of organisms such as molluscus, ठीक, and arthropods, all members of class insecta. ठीक है, तो जनरली आप इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आए हैं तो कई बार वो कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं आपके फीट के नीचे आ जाते हैं. व्हाट यू ऑब्जर्व, अ फ्लूइड इट कम्स आउट फ्रॉम देयर बॉडी. so this fluid is actually the circulating fluid and that is present in the open cavity. ठीक बेटे, अब आपको पता है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्लड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि all the cells and tissues they are surrounding that open spaces which are known as synostosis, and through these open spaces the circulating fluid, ठीक है, which can be called as blood. जरूरी नहीं है कि ब्लड कितना रेड कलर का होगा, वो कैसा भी हो सकता है, जनरली कलरलेस होता है. तो ये सेल्स और टिश्यूज होते हैं, they surround those open cavities or synostosis. They comes in contact with the fluid that is present inside those synostosis, and in this way exchange of gases as well as other essential nutrients it takes place. ठीक है बेटे, and what is the characteristic feature of the closed circulatory system? So you must remember, as the name itself indicates, closed circulatory system means the blood is pumped by the heart, but later that blood is carried by the blood vessels. These may be arteries, these may be veins, or these may be the fine tubules of these arteries, which may be called as capillaries. Okay बेटे, तो कहते हैं कि ब्लड जो है उनको ब्लड वेसल्स कैरी करेंगी, और क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के जरिए दिस ब्लड इज फाइनली रीचेस द सेल्स एंड द टिश्यूज as well as the other target organs. That's why it is known as the closed circulatory pathway. Okay बेटे, closed circulatory pathway is an advanced feature
So it is concerned with all the members of chordates as well as members of phylum Annelida. देखो phylum Annelida के members के अंदर कौन से आ जाएंगे? लीचीज आ जाएंगी, अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है. यू जनरली ऑब्जर्व्ड अर्थवर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड समटाइम एक्सीडेंटली इट गेट कट, ठीक है. आपकी हेल्प से जो है वो कई बार बीच में से कट जाता है. तो व्हाट यू ऑब्जर्व, एक डॉर्सल लाइन आपको नजर आती है और उसमें से ब्लड निकलता हुआ नजर आता है. इसका मतलब एनिलेट्स जो हैं उनमें भी क्लोज्ड ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ओके बेटे, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन देयर हार्ट. ठीक है, अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके हार्ट के अंदर जो है वो कितने कितने चैम्बर प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हमने क्लास फाइसेस लिया है. फाइसेस के अंदर फिशेस आ जाती हैं, ठीक है बेटे. फिशेस दोनों तरह की हो सकती हैं. दिस में भी कार्टिलेज फिशेस और दिस में भी द बोनी फिशेस. व्हाट काइंड ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट? तो इन केस ऑफ फिशेस वी हैव टू चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है बेटे, द टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. दिस मींस वन ऑर्गन इज देयर, ठीक है. एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा और एक ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होगा. Okay बेटे, now you know that gills are the respiratory organs of fishes. So what is the special thing? The blood. First, the blood is deoxygenated in nature. Then this blood it finally reaches the gills and get oxygenated. और oxygenated blood जो है वो फिर आगे जाके कहते हैं कि body organs जो है उनको पास होता है. बॉडी ऑर्गन्स जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं और फिर से ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है. तो इस तरह से ब्लड जो है वो एक ही ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल जो है उसके जरिए जो है वो सर्कुलेट होता है. ट्रू ऑक्सीजनेशन इज नॉट देयर, ठीक है. सम बट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज देयर इन केस ऑफ फिशेस. ओके बेटे, बस एक चीज याद रखेंगे, जिस तरह से ह्यूमंस में लंग्स प्रेजेंट है ऑक्सीजनेशन के लिए, उसी तरह से फिशेस के अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेशन कौन करते हैं? गिल्स करते हैं. ठीक, उसके बाद देखिए दे हैव गिवन वन अनदर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास कौन से आ जाएंगे? फ्रॉग्स आ जाएंगे, सालमेंडास आ जाएंगे. ओके बेटे, तो व्हाट काइंड ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट? 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. 2 ऑरिकल्स आर देयर एंड 1 वेंट्रिकल इज देयर. ठीक बेटे, तो ऑरिकल्स दे कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड लेटर वो कहता है कि देखो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो रेस्पिरेशन जो है वो दोनों तरीके की रेस्पिरेशन करते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज आल्सो देयर as well as cutaneous respiration is also there. ठीक है, you are well familiar with both the terms. Cutaneous respiration means respiration through skin and pulmonary respiration, if I am using the word, this means they are the lungs. ठीक बेटे, तो deoxygenated blood which finally enters into the auricles through blood vessels. ठीक है, this deoxygenated blood it goes towards the lungs for their oxygenation and when the oxygenation takes place then again the blood passes. ठीक है बेटे, तो इसमें वो कहता है कि देखो वेंट्रिकल एक ही प्रेजेंट है तो इसलिए वो कहता है कि ब्लड जो है उसका ऑक्सीजनेशन अगर हो भी जाता है तो उसके बाद भी वेंट्रिकल्स में जो प्रेजेंट ब्लड है उसको आप 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कह सकते, उसमें मिक्सिंग रहती है. ठीक, तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल तो है. ठीक, तो आपको पता है कि लेफ्ट ऑरिकल जो है वो हमेशा कौन सा ब्लड रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है. राइट ऑरिकल हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, पर दोनों की जो ओपनिंग है वो सिंगल वेंट्रिकल में है, इसलिए वो कहता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दे गेट मिक्स्ड इन द सिंगल वेंट्रिकल. सो यू कैन नॉट से दैट ट्रू ऑक्सीजनेशन इज देयर इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ओके बेटे, वन एक्सेप्शनल केस इज आल्सो देयर इन केस ऑफ क्रोकोडाइल. इन केस ऑफ क्रोकोडाइल कितना चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट इज देयर. ठीक है, and such type of heart is also found in case of humans as well as in birds too, and you also know the reason behind that. ठीक है, last time we have asked one question कि भाई humans में और birds में why a 4 chambered heart is present. So you know that humans they have to share a variety of habitats and according to the demand of those habitats they have to spend lot of energy. ठीक बेटे, तो true separation of oxygenated and deoxygenated blood is required. दूसरी चीज कहते हैं कि बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स जो है उन्होंने क्या करना है? फ्लाई करना है and their flight muscles they require high demand of energy and because of that there should be a true separation of oxygenated and deoxygenated blood in them. Okay beta, that's all about this paragraph. Now we are starting with our next topic, that is our main topic, that is human circulatory system. Okay, we have also learned about the double circulatory
respiration process in class 10th. So here I have draw the diagram of the human heart. ठीक बेटे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? एक मस्कुलर हार्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। ओके बेटे, मस्कुलर हार्ट जो है उसका एक ही फंक्शन है जो आपको पता है कि वो क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि वी हैव ब्लड वेसल्स। ठीक है, वी हैव ब्लड वेसल्स, तो दिस में बी आर्टरीज और दिस में बी वेन्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आर्टरीज जो है वो जनरली कौन सा ब्लड लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स जो है वो टिश्यू से और सेल से ब्लड कलेक्ट करेगी, इसलिए वो ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड होगा। एंड तीसरी चीज जो है वो कहता है कि इसके अलावा देखो कौन सी चीज उसमें सर्कुलेट होनी है ब्लड वेसल्स में। तो सभी बच्चों को मालूम है कि ब्लड वेसल्स में क्या लेके जाना है? ब्लड लेके जाना है, और ब्लड क्या है हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है। There are three components of the human circulatory system or human blood vascular system. Muscular heart is there, blood vessels are there, this may be arteries and veins, and the blood which is the circulatory fluid. ठीक है, one thing I have already explained, beside blood one another circulatory fluid is running in your abdominal portion, and that is known as lymph. It is also known as the tissue fluid, and it is involved in the transport of some fat soluble substances. Okay बेटे, this you must know. उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, देखिए ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक, तो देखो बेटे ह्यूमन हार्ट जो है वो कहते हैं कि आपको कैसे नजर आता है। तो अगर आप अपना हैंड लेके इस तरह से अपनी मुट्ठी जो है उसको बंद कर लेते हैं, ठीक, तो जिस तरह से आपकी ये मुट्ठी जो है उसकी शेप है उसी तरीके का आपका हार्ट है। ठीक, तो कहते हैं कि आपको मालूम है देयर आर 3 टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स from which different body organs they later arise in the embryo. तो उसमें हमारे पास कितने तरह के एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं? We have 3 type of embryonic layers. These may be ectoderm, endoderm and mesoderm. तो देखिए फर्स्ट लाइन इज the heart is a mesodermally derived organ. मतलब हार्ट आपकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, मिडल एम्ब्रियोनिक लेयर जो है मेसोडर्म, उसमें से ये डिराइव हुआ है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन योर थोरैसिक रीजन। ठीक है, आपकी बॉडी जो है उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो बॉडी का जो अपर पोर्शन है उसको थोरैसिक रीजन कहते हैं, वहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट है एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट लंग्स। ठीक है, आपके जो 2 लंग्स है, राइट और लेफ्ट लंग जो है, उनके बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट है और थोड़ा सा शिफ्ट हो रखा है किसकी तरफ? टुवर्ड्स योर लेफ्ट लंग। ठीक है बेटे, साइज उसका कैसा है? क्लाइंस्ड फिस्ट जैसा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने फिंगर्स को क्लोज करके इस तरह से आपकी एक मुट्ठी बन जाती है, तो उस तरह की शेप है आपके हार्ट की। अब कहते हैं कि हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, बिकॉज इट इज अ डेलिकेट टाइप ऑफ ऑर्गन, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, डबल वॉल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है जो उसको कवर करके रखती है, एंड दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। ऑलवेज रिमेंबर पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनियस वॉल है जो कि आपके पूरे हार्ट को क्या करती है? कवर करके रखती है। इस वॉल में 2 मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है बेटे, आउटर मेम्ब्रेन इज देयर, इनर मेम्ब्रेन इज देयर, एंड व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन? ऑलवेज अ फ्लूइड इज देयर, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक बेटे, तो पेरिकार्डियम इज द डबल वॉल मेम्ब्रेनियस structure that covers your whole heart, and after this what is present inside the outer and the inner pericardial membranes, so fluid is present, and that fluid is known as the pericardial fluid. Now how many chambers are there? As you know that human heart is an advanced type of heart, so as in all chordates, similarly in human beings too, 4 chambered heart is there. Okay bete, see the diagram given here, the upper 2 chambers, the upper 2 chambers, ये जो राइट साइड के अपर चैम्बर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर प्रेजेंट है, they are known as the right auricle and the left auricle respectively. ठीक बेटे, तो sometimes we have also used the term atrial. एट्रिया भी हम कई बार वर्ड यूज करते हैं ऑरिकल के लिए। अपर 2 चैम्बर्स जो हैं उनका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक साइज है, एंड द बोथ द चैम्बर्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है? they are known as the right and the left auricle, and the corresponding 2 lower chambers, okay, that which is present at the right side, it is known as the right ventricle, comparatively larger in size as compared to the auricle, and similarly that is present on the left side, it is known as the left
वेंट्रिकल। ओके बेटे, तो ऊपर वाले जो दो हैं वो राइट और लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे वाले तो जो चैम्बर हैं दे आर नोन एज द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो दोनों ऑरिकल्स है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है जो दोनों को सेपरेट करता है। ठीक, इसीलिए उसको बोला गया है इंटर एट्रियल सेप्टम। द सेप्टम व्हिच सेपरेट्स द राइट ऑरिकल फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल, इट इज नोन एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके बेटे, उसी तरीके से जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, दे आर आल्सो सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ a septum, a partition, and that is known as the interventricular septum. ओके बेटे, interventricular septum। अब वो कहते हैं कि the right auricle it opens into the right ventricle and similarly the left auricle it also have to open into the left ventricle. So between the right auricle and the right ventricle, one septum is also there. It separates the right auricle from the right ventricle, and what it is known as? It is known as interatrioventricular septum. Okay, it is known as interatrioventricular septum. Similarly, उसी तरीके से left auricle it has to open into the left ventricle and it is also separated by a septum, and that is known as the, ठीक है, again it is known as interatrioventricular septum। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि जो ऑरिकल है वो वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं, तो वेंट्रिकल और ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम तो प्रेजेंट है, पर वो कहते हैं कि इन सेप्टम्स के बीच में certain openings are there through which the blood that is present in the auricle, they are supposed to enter into the ventricle. So these openings, which are the minute type of openings, they are guarded by some valves, and these valves, ठीक है, they have certain specific type of structures जो क्या करते हैं, valves को बंद करके रखते हैं जब तक कि उनकी जरूरत नहीं है उनके ओपन होने की। तो कहता है कि ये वाल्व्स जो हैं उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं एक तरह की कवरिंग है, तो उसको उन्होंने क्या बोला है, कप्स बोला है। These are known as the muscular flaps or the cups. See, the opening between the right auricle and the right ventricle is guarded by a valve which is formed by 3 muscular flaps or the cups। ठीक है, राइट ऑरिकल की बात कर रही हूँ मैं। राइट ऑरिकल जब राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा तो जो उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है उसमें जो माइन्यूट ओपनिंग है उसमें 3 कहता है कि लेयर्स वाले क्या प्रेजेंट है, कप्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए उस वाल्व को क्या बोला गया है, इट इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके बेटे, आप कहते हैं कि दूसरी साइड पे आ जाइए, जहां पे आपका लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल हैज टू ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वन सेप्टम इज देयर, दैट इज नोन एज इंटरएट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, and here again one opening is there। और कहते हैं कि this opening have again cups like structures। ठीक है, जो ब्लड जो है उसको अलाउ करते हैं एंटर होने के लिए। तो ये कप्स जो हैं वो यहाँ पे 2 लेयर वाली वाल्व्स से बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाइकस्पिड वाल्व बोला गया है। तो याद रखिए कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कप्स हैं वो ट्राइकस्पिड है, और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो कप्स हैं वो कैसे हैं, बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड वाल्व का एक अनदर नेम भी है, इट इज आल्सो नोन एज द मिट्रल वाल्व। इट इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ओके बेटे, अब देखिए ऑरिकल जो है वो किसमें ओपन हो गए, ऑरिकल ओपन इनटू द वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल and left auricle open into the left ventricle। And you also know that the right auricle it always receives the blood that comes from the cells and the tissues from the upper portion of the body as well as from the lower portion by large sized vena cavas which are known as superior and inferior vena cavas। ठीक है बेटे, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा हम कहते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी डायमीटर वाली जो वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड लेकर आएंगी, सेल्स और टिश्यूज में से हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। तो हार्ट का जो राइट चैम्बर है ऑलवेज रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Okay, and always the left chamber of the heart, that is the left auricle, they always receive the oxygenated blood। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि राइट ऑरिकल अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं तो राइट ऑरिकल्स जो है when we pour their blood into the right ventricle, this means the blood that is present in the right ventricle is also deoxygenated blood। And you know that such type of deoxygenated blood is supposed not to be allowed to pass to the body organs, their oxygenation is required।
This means that the right ventricle must have to pour their blood into the pulmonary artery. As the name itself indicates, if it is the pulmonary artery, then this means it carries the deoxygenated blood and it collects the blood from the heart and finally pass that deoxygenated blood to the lungs for their oxygenation. ठीक बेटे, तो राइट ऑरिकल deoxygenated blood रखेगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड डाल देगा आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स। ठीक बेटे, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी एंड लंग्स उसका क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन करेंगे, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेशन कर दिया। इसका मतलब लंग्स जो है यहाँ पे आप उसको एक ऑर्गन एक टिश्यू कंसीडर कर सकते हैं, तो इसलिए वहां से आने वाली जो ब्लड वेसल होगी, जो अब कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो यहाँ पे पल्मोनरी वेन होगी। ओके बेटे, तो अब देखो पल्मोनरी वेन जो है हमेशा हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में डालेगी, क्योंकि आपको ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो नाउ दिस ब्लड इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट auricle. Now the left auricle it receives the oxygenated blood and the oxygenated blood it enters into the left ventricle after the opening of the bicuspid valve that is present between the left and the left auricle and the left ventricle. Okay, bete. Now already this blood is an oxygenated blood, so no need of the further oxygenation is required. Now what this blood do? This blood it finally enters into a bag-like structure and you know that bag-like structure is known as aorta. ठीक बेटे, तो याद रखिए कि हमेशा जो राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में डालना है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने ब्लड आयोटा में डालना है। अभी तक मैं आपको ये बताती आ रही हूँ कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो है उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, तो उसी तरीके से व्हेन वेंट्रिकल हैज टू pour their blood into the pulmonary artery and here the left ventricle has to pour their blood into the aorta, then here also special type of valves are present between both the chambers. ठीक है बेटे, तो दोनों ही वेंट्रिकल्स जो हैं जब अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पोर करती हैं और आयोटा में पोर करती हैं, तो वहां पे भी वाल्व्स प्रेजेंट हैं एंड दीज वाल्व्स आर नोन एज द सेमीलूनर वाल्व्स। दीज वाल्व्स आर नोन एज द सेमीलूनर वाल्व्स। ठीक, तो दोनों साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो ओपनिंग है वो सेमीलूनर वाल्व्स के जरिए होती है। तो राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पोर करते हैं एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इट पोर इट्स ब्लड इनटू द आयोटा। आयोटा से वो ब्लड जो है वो आर्टरीज लेके अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज के पास चली जाती हैं, वेयर एज जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है। ओके बेटे, हाउ मेनी टाइम्स द ब्लड एंटर्स इनटू योर हार्ट? तो यू ऑलवेज नो that first time when the blood it enters into your heart, that is a deoxygenated type of blood. All right, so this means that deoxygenated blood it later carried by the pulmonary artery after collecting from the right ventricle to the lungs, and its oxygenation is done by the lungs, and again the blood when gets oxygenated, then again once again the blood enters into the heart for the second time, but in the which chamber? You must remember it is the left auricle. So since the blood it enters into the heart, how many times? 2 times. That's why this type of circulation to the human heart is known as the double circulation. Okay bete, this is clear to all? ठीक है, still I have not explained the cardiac cycle. अभी तक मैंने cardiac cycle नहीं explain किया आपको, सिर्फ heart के अंदर blood का movement कैसे होता है वो मैंने आपको explain किया है। heart के अलग अलग जो है पार्ट्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है वेना कैवा। ठीक बेटे, वेना कैवा क्या है? These are actually the blood vessels known as veins having very larger diameter. तो ऐसी veins जो कि बॉडी के अपर पोर्शन में से ब्लड कलेक्ट करती हैं, they are known as the superior vena cava, and those which collects from the lower abdominal portion of your body, they are known as the inferior vena cava. So always remember the superior and the inferior vena cava, they always collect deoxygenated blood and always pour that deoxygenated blood in the right auricle. Okay bete, see what I have written on the left side. I have written pulmonary vein. Okay, you must know this pulmonary vein. It is actually that vein which is actually coming from the lungs and carry what kind of blood? Oxygenated blood. क्योंकि लंग से आने वाला ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक बेटे, तो इसीलिए पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड देखिए किसमें डाल रही है? लेफ्ट ऑरिकल में डाल दिया, इसीलिए पल्मोनरी वेन की लोकेशन यहाँ पर। ठीक बेटे, उसके बाद आपको आयोटा नजर आ रहा है,
ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में हार्ट दिखाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे आइकन नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए आपको और क्या क्या चीजें नजर आ रही है, आपको राइट ऑरिकल नजर आ रहा है, आपको लेफ्ट ऑरिकल नजर आ रहे हैं, दोनों का साइज देखिए कितना छोटा है और वेंट्रिकल का साइज उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए बेटे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल की जो वाल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, पर वेंट्रिकल्स की वाल्स जो होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं। उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे पोर देयर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, देन दैट ब्लड इज एट वेरी हाई प्रेशर, तो बस्टिंग ना हो जाए हार्ट की, इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वाल्स है वो काफी ज्यादा थिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉल्स की बात कर रही हूँ, WA की बात कर रही हूँ। अगर मैं वाल्व की बात कर रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कप्स वाली वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, वाल्व्स का अगर आपको फंक्शन पूछा जाता है तो वाल्व्स का फंक्शन है दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वो पीछे मुड़ सकता है, तो इसीलिए फटाफट व्हेन द ऑरिकल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, दे पोर देयर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स and on both the sides, at one side on the right side the tricuspid valves open, and on the left side the bicuspid valves open, and as soon as the ventricle they receive the blood, these valves they immediately closed। ठीक है बेटे, एकदम से क्लोज क्यों हो जाती हैं, ताकि वेंट्रिकल से वो ब्लड जो बहुत ही हाई प्रेशर पे है वो वापस ऑरिकल की तरफ मुड़ ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बैक फ्लो जो है उसको रोकने के लिए। ओके बेटे, एक चीज और यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाई है, तो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो हार्ट है इज कवर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स एंड दीज आर नोन एज द कार्डियक मसल्स। तो होल हार्ट इज कवर्ड बाय द कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक, एंड पैचेस ऑफ दिस कार्डियक मस्कुलेचर इज सीन इन द हार्ट। तो कहते हैं कि छोटे छोटे से पैच जो है वो कार्डियक मसल्स के हमें नजर आते हैं, और इसी तरह का एक पैच हमें जो है वो राइट ऑरिकल के अपर मोस्ट कॉर्नर पे नजर आता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एस नोड। ठीक है बेटे, ऐसे नोड which is known as the sinoatrial node is actually a nodal tissue or a patch of the cardiac musculature that is found at the upper corner of the right auricle. Similarly, a small patch of the nodal tissue which is actually the part of the cardiac musculature, it is also found at the lower left। ठीक है बेटे, लोअर कॉर्नर जो है राइट ऑरिकल का वहां पे प्रेजेंट है। तो जो बड़ा पैच प्रेजेंट है उसको साइनोएट्रियल नोड कहा गया है, और जो उसके लोएस्ट पोर्शन में और एक पैच प्रेजेंट है नोडल टिश्यू में, उसको क्या बोला गया है, उसको एबी नोड बोला गया है। ठीक, एबी नोड मींस यस। उसके बाद देखो एक चीज और आपको नजर आ रही है, वो कहते हैं कि साइनोएट्रियल नोड जो है इट इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। It is known as the pacemaker of the heart. Why it is known as the pacemaker of the heart? Because all kind of action potentials that are responsible for the contraction of the as well as the relaxation of the heart activities, they are created by the sinoatrial node। ठीक है बेटे, इन एसोसिएशन विद द एबी नोड। ठीक, तो कहते हैं कि जब भी हार्ट जो है उसमें पहली बार क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो कॉन्ट्रैक्शन हमेशा किसने करना है, साइनोएट्रियल नोड ने उसके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करनी है। और जब वो कहता है कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन किसने करना है, एबी नोड ने। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, साइनोएट्रियल नोड जो है वो ऊपर वाले जो दोनों ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल यानी सिग्नल्स जनरेट करती है, और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर सिग्नल कहां से आते हैं, एबी नोड से आते हैं। ओके बेटे, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, तो कहते हैं कि जो इसका एबी नोड है वहां से देखिए स्ट्रक्चर फाइबर्स की फॉर्म में जिस तरीके से जा रहा है। ठीक, उसके बाद वो बाइफरकेट हो जाते हैं, उसके दो पार्ट हो जाती है, और एक जो है वो एक वेंट्रिकल की तरफ और दूसरा दूसरे वेंट्रिकल की तरफ चला गया है। ठीक बेटे, मैं पैराग्राफ नंबर 2 पर हूँ, दूसरे पेज पे देखिए जहाँ पे साइनोएट्रियल नोड एंड एबी नोड के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक बेटे, तो कहते हैं कि एबी नोड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल के लोएस्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और उसमें से वो कहता है कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, उसके बाद वो डिवाइड कर जाता है, और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से राइट वेंट्रिकल की तरफ चला गया, देखो यहाँ से जा रहा है और बीच में से दूर हो जाता है ऐसे। ठीक बेटे, दूसरा जो उसी तरह का मेन फाइबर में से जो बाइफरकेट करके फैमिली स्ट्रक्चर है जो है उस तरीके से जा रहा है और बीच में से वो भी फाइबर हो गया। ठीक बेटे, हार्ट के बीच में छूट गया, उसके बाद वो कहता है कि ऑरिकल्स के पास जाके
जहां से ऑरिकल किसके अंदर ओपन हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स में ओपन हो रहे हैं ना, वहां से ये न्यूमरस सेटेलाइट स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हुए दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ऐसे होता है। ठीक, तो ये वाले जो मेन फाइबर है जिसकी इस तरीके से दो बाइफर्केशंस हो गई है, इस पूरी चीज को उसने बंडल ऑफ हिज बोला। इट इज नोन एज बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज जो है वो बाइफर्केट करके जो लेफ्ट साइड की तरफ चले गए हैं वो लेफ्ट बंडल है, और जो राइट साइड की तरफ चले गए हैं वो राइट बंडल है। और उसके बाद कहते हैं कि राइट वाला जो बंडल ऑफ हिज का पार्ट है वो यहाँ जाके वेंट्रिकल्स में क्लस्टर ऑफ फाइबर्स की फॉर्म में इस तरह से निकला है फिर से वेंट्रिकल के अंदर। और उसी तरह से लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट बंडल वो भी यहाँ से क्लस्टर ऑफ फाइबर्स की फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ है। तो these cluster of minute fiber-like structures are known as cordia tendril, या फिर हम इसको सिंपली कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। They are known as Purkinje fibers in honor of the scientist Purkinje who have first described these fibers. These are actually the fine fiber-like structures जो किसकी हेल्प से बने हैं, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल्स जो हैं उसी का फर्दर डिवीजन है। ठीक है बेटे, अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने सारे फाइबर्स की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि when the ventricles have to contract, whether the right ventricle have to contract or whether the left ventricle have to contract, we know that the signals originate from the AV node. ठीक है, तो when the signals and the action potentials they are originate from the AV node, then that signal it finally reaches this bundle of bits. And you know that this bundle of bits is finally divided into the right bundle and the left bundle. Okay, now this signal it is received by the right bundle, then it passes into these myelin fibers, which finally reaches the ventricles on the respective side. Similarly here also, तो ये Purkinje fibers जो है ये सिग्नल किसको सप्लाई करते हैं, वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं, और इसके बाद वेंट्रिकल्स जो है उनको क्या सिग्नल मिलता है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स व्हिच इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक बेटे, तो देखो चार फेसेस हार्ट के अंदर होनी है, फिर से सुनेंगे, चार फेसेस हार्ट के अंदर होनी है। तो कहते हैं कि जब इनिशियली हार्ट के चारों चैम्बर, दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। अब वो कहता है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और राइट ऑरिकल में डाल देती है। ठीक है बेटे, दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, किसमें डाल देती है, लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। अब कहते हैं कि दोनों ही ऑरिकल्स के अंदर ब्लड आ गया है, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए अब ऑरिकल्स जो हैं जब वो ब्लड रिसीव कर लेंगे उसके बाद उन्होंने वो ब्लड किस में डालना है, वेंट्रिकल्स में डालना है, और वेंट्रिकल्स में अगर उन्होंने डालना है देन दे मस्ट हैव टू बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो as soon as they receive the blood either from the superior and inferior vena cava or from the pulmonary veins, both the auricles they contract, and the contraction phase of the auricles they finally receive the signal from the sinoatrial fluid. Okay bete, so this means contraction of the auricles takes place, the auricles they contract, and because of contraction of auricles the pressure that is applied by that blood it finally allow the valves that is present between the auricle and ventricles to open. You know that कि राइट साइड में जो वॉल प्रेजेंट है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट साइड में कैसी वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व है। तो इस प्रेशर से दोनों ही वॉल्स ओपन हो जाएंगी, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल, और ये ऑरिकल्स का ब्लड किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक बेटे, अब वो वॉल्स फिर से क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब कहते हैं कि वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ चुका है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। तो व्हाई दिस ventricles contract, when this ventricles contract, when this AV node it receives the signal from the SC node for the contraction of the ventricles here. ठीक बेटे, तो this AV node it receives the signal for the contraction of the ventricles from the SC node and it is received by this bundle of waves, and from this bundle of waves to the left bundle and the right bundle, and through the Purkinje fibers it finally reaches the respective ventricles and the contraction of the ventricles takes place. तो अब देखो ऑरिकल जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक, और उन्होंने वेंट्रिकल में ब्लड डाल दिया। इसका मतलब अब ऑरिकल्स कौन सी फेज में है, ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्सेशन के फेज में है। तो जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसका मतलब ऊपर वाले ऑरिकल क्या हो चुके होंगे, रिलैक्स हो चुके होंगे।
ठीक बेटे। अब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उन्होंने अपना ब्लड, आपको पता है किसमें डालना है, राइट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड किसके अंदर डालना है, पल्मोनरी आर्टरी में डालना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड किसके अंदर डालना है, आयोटा में डालना है। इसका मतलब अब कौन सी वॉल्स ओपन होंगी दोनों तरफ, सेमी लूनर वॉल्स ओपन होंगी। ठीक बेटे। तो जब वेंट्रिकल अपना ब्लड डाल देंगे दोनों ही रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में, तो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट फेज में चले गए थे आपको रिलैक्स हो जाएंगे। ऑरिकल्स पहले से ही रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक बेटे। तो चारों ही चैम्बर एक जगह पे आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फेस में नजर आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट डायस्टॉल कहेंगे। ठीक बेटे, क्लियर हो गया। देखो इसको ओवरऑल कैसे समझेंगे, टाइम होने वाला है घर वाले बच्चों का, कोई बात नहीं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डायग्राम एक बार ध्यान से देखेंगे, डायग्राम एक बार ध्यान से देखेंगे सभी।